Good day, students. Today's lecture is on binary search tree. Binary search tree is a type of binary trees having the characteristic that all the left nodes of a node are less than the have less values than its parent node, and all the right nodes have the higher value than their parent nodes. So first, what is a binary search tree? In a binary search tree, all the nodes in the left subtree have a value less than that of the root node. Similarly, all the nodes in the right subtree have a value greater than the root node. The same rule is applicable to every subtree in the tree. So, we have root node 20. Its left son is 12, which is less than 20. Its right son is 25, which is greater than 20. Again, 12 is a root node of left subtree. Its left son is 10, which is less than 12. Its right son is 15, which is greater than 12. Similarly, 25 is the root node of right subtree, and its left son is 22, which is less than 25. So every node satisfies these properties, that is, its every root node has left nodes less than and right nodes greater than its root value. Now, for example, we have given these values and we have to create a binary search tree for these numbers. So, one by one, we see how it will happen. So first, 45 is at the root. The first number becomes the root element. Now, 39 is less than 45, so it becomes the left child of 45. Next, 56 is greater than 45, so it becomes the right child of 45. Next is 12. So 12 is less than 45. We move toward left child. 12 is less than 39. So it becomes the left child of 39. So it becomes the left. Next one is 34. 34 is less than 45. It is less than 39, but it is greater than 12, so it becomes the child of 12. See, next one is 78. 78 is greater than 45, which is greater than 56, so 78 becomes the child of 56. Okay, next is 32. 32 is less than 45. Now we come at 39. It is less than 39. We come at 12. It is greater than 12. So we come at 34. It is less than 34, so it becomes the child of 34. Next is 10. 10 is less than 45, which is less than 39. 12, it is less than 12, so it becomes the child of 12. And so on. Next you add 89, 54, 67, 81. You can add in this way.
Now the basic operations on binary search trees. So we can search a node in a binary search tree. We can insert a new node in a binary search tree. We can delete a node from a binary search tree. So one by one we will see these three operations. So first, what is meaning of searching a node in a binary search tree? Search means to find whether a given value is present in the tree or not. So the searching process begins at the root node. The function first checks if the binary search tree is empty. If the binary search tree is empty, then the value we are searching for is not present in the tree. So the search algorithm terminates by displaying an appropriate message. If there are nodes in the tree, that is tree is not empty, then we check to see if the key value of the current node is equal to the value to be searched. फिर हम करंट नोड की वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये वही वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं? अगर तो वही वैल्यू है तो हम रिटर्न कर देंगे कि ये प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं है, सो इट चेक्स इफ द वैल्यू टू बी सर्च्ड फॉर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द करंट नोड। अगर ये लेस देन है करंट नोड से तो हम लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे, इन विच केस इट शुड बी रिकर्सिवली कॉल्ड ऑन द लेफ्ट चाइल्ड। इन केस द वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द करंट नोड, अगर ये करंट नोड से बड़ी है तो हम सब ट्री में सर्च करेंगे, इट शुड बी रिकर्सिवली कॉल्ड ऑन द राइट चाइल्ड। चलिए देखते हैं एग्जांपल में। सो हम एग्जांपल देख रहे हैं सर्चिंग के बारे में। हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, उसमें हमें 67 को सर्च करना है। तो ये हमारे पास ट्री है, हमने 67 को सर्च करना है। कैसे करें? सबसे पहले हम 67 को 45 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 67 इज ग्रेटर देन 45, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में 56 पे पहुंच गए, 56 के साथ कंपेयर करेंगे। 67 56 से भी बड़ा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 78 पे पहुंच जाएंगे। 78 पे पहुंच गए, 78 के साथ कंपेयर करेंगे। 78 से छोटा है तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे, यानी कि हम 67 पे पहुंच गए। यहाँ पे हमने कंपेयर किया, तो इसके इक्वल आ गया, हमने इसको रिटर्न कर दिया कि ये ट्री में इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। एल्गोरिथम देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री का। सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री का एल्गोरिथम, तो हम भी एल्गोरिथम है हमारे पास सर्च एलिमेंट नाम का ट्री। वो ट्री की हम रूट एलिमेंट दे रहे हैं जिसमें से हमें सर्च करना है, और वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है। स्टेप 1, इफ ट्री डाटा इज इक्वल टू वैल्यू और ट्री इक्वल टू नल, या तो ट्री डाटा वैल्यू के इक्वल है या ट्री इक्वल टू नल है, दोनों केसेस में हम ट्री को रिटर्न करते हैं। नल है तो भी एम्प्टी ट्री रिटर्न हो जाएगा, और अगर ट्री डाटा वैल्यू के इक्वल है तो भी वो ट्री रिटर्न हो जाएगा कि यस ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एल्स इफ वैल्यू इज लेस देन ट्री डाटा, अगर वैल्यू ट्री डाटा से छोटी है तो नेचुरली हम लेफ्ट सब ट्री में सर्च करेंगे। सर्च एलिमेंट को हम दोबारा कॉल करेंगे, रिकर्सिव कॉल करेंगे, उसको लेफ्ट सब ट्री की रूट देंगे और वो वैल्यू देंगे। अदरवाइज ना तो रूट के साथ मैच करता है, ना ही उससे छोटा है, तो इसका मतलब 100% है कि एलिमेंट बड़ा होगा, क्योंकि तीन ही हो सकते हैं, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। तो दो कंडीशनें हमारी फेल होगी, डाटा वैल्यू के इक्वल नहीं है और ट्री लेफ्ट वैल्यू ट्री डाटा से छोटी नहीं है, तो इसका मतलब बड़ी है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर सर्च एलिमेंट को कॉल करेंगे, उसको राइट सब ट्री की रूट देंगे और एक वैल्यू दे देंगे जो हमने सर्च करनी है। तो ये रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा, या तो अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगा, ट्री की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर नल रिटर्न हो जाएगा कि ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता। ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है। इफ ये इस इफ की एंड स्टेटमेंट है, ये इस इफ की एंड स्टेटमेंट है। So this is how we can perform searching in a binary search tree. Now, how to insert a new node in a binary search tree? Insert means to add a new node with a given value at the correct position in the binary search tree. Insert का मतलब एक नए नोड को एक गिवन वैल्यू के साथ करेक्ट पोजीशन के ऊपर इंसर्ट करना है।
Adding the node at the correct position meant that the new node should not violate the properties of the search tree. Adding का क्या मतलब है कि जो नोड है वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को वायलेट ना करे और प्रॉपर पोजीशन के ऊपर इंसर्ट भी हो जाए. सो इनिशियली द इंसर्ट फंक्शन इज सिमिलर टू द सर्च फंक्शन. सो स्टार्टिंग में जो इंसर्ट फंक्शन है वो सेम ही है जैसे सर्च फंक्शन है, यानी कि हम पहले जगह सर्च करेंगे कि कहाँ ना लेफ्ट में जाएगा या राइट में. सो दिस इज बिकॉज we first find the correct position where the insertion has to be done and then add the node at that position. तो इसका मतलब है सबसे पहले हम वो पोजीशन ढूंढेंगे, फिर उसी जगह पर इंसर्ट करेंगे. द इंसर्ट फंक्शन रिक्वायर्स टाइम प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री इन द वर्स्ट केस. वर्स्ट केस के अंदर कहता इंसर्ट फंक्शन को कितने टाइम की जरूरत है, कहता जितनी ट्री की हाइट है उतने टाइम की जरूरत लगती है. दैट इज इट टेक्स लॉग एन टाइम. इसकी हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लॉग है. इन द एवरेज केस के अंदर लॉग एन ऑन द एवरेज लॉग एन टाइम लग सकता है एंड बिग ओ एन टाइम इन द वर्स्ट केस. और वर्स्ट केस के अंदर कितना टाइम लग सकता है, बिग ओ एन, यानी कि जितने एलिमेंट है उतने कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं या फिर लॉग एन कंपैरिजन करने पड़ सकते हैं सर्च करने के लिए या फिर ऐसे के लिए इंसर्ट करने के. ठीक होगी जी बात. सो जितनी हाइट है उतना टाइम लगता है और वो हाइट लॉग एन भी हो सकती है और वर्स्ट केस में एन भी हो सकती है. सो पहले एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है, उसके अंदर हमने दो एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, एक 80 और एक 35. देखते हैं तो ये हमारे पास ट्री है जिसके अंदर 80 इंसर्ट करना है. सबसे पहले हम 30 पे रूट पे गए, चेक किया 80 30 से बड़ा है तो इसका मतलब राइट साइड में इंसर्ट होएगा. फिर उसके सब ट्री पे गए 40 40 80 40 से भी बड़ा है तो इसका मतलब है उसके राइट साइड में इंसर्ट होएगा. तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 80. ये देख लीजिए 80 इंसर्ट हो गया. फिर हमने 35 इंसर्ट करना है. 30 पे गए, 35 30 से बड़ा है, राइट साइड में होएगा. फिर 40 पे आ गए, 35 40 से छोटा है तो नेचुरली उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा. तो 35 यहाँ पे आ गया, इंसर्ट हो गया. तो इस तरीके से हमने इंसर्ट करना है उसको प्रॉपर पोजीशन पे. एल्गोरिथम देख लेते हैं. इंसर्ट नाम का फंक्शन है. ट्री हमारा वो ट्री की रूट है जहाँ पे जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना है और वैल्यू वो वैल्यू है जो हमने इंसर्ट करना है. सबसे पहले अगर ट्री की वैल्यू नल है तो हम मेमोरी एलोकेट करेंगे ट्री को. ट्री डाटा इक्वल टू वैल्यू, ट्री की डाटा पोर्शन में वैल्यू डाल देंगे. ट्री के लेफ्ट और ट्री के राइट को नल कर देंगे, यानी कि एक ही नोड बनेगा. अगर ट्री नल है तो एक नोड बनेगा ऐसे. ठीक है जी. यहाँ पे हम ये वैल डाल देंगे बीच में, ये हमारा डाटा हो गया और ये भी नल हो गया. इसका राइट चाइल्ड भी और इसका लेफ्ट चाइल्ड भी दोनों नल हो गए. अदरवाइज अगर वैल्यू ट्री डाटा से छोटी है, तो हम इंसर्ट को दोबारा कॉल करेंगे, उसको लेफ्ट सब ट्री का रूट देंगे और वैल्यू दे देंगे कि लेफ्ट सब ट्री में जहाँ पे भी कंडीशन बने वहाँ पे इंसर्ट कर दे. अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन फेल हो गई, ना तो ये नल है और ना ही ये छोटा है, इसका मतलब है ये बड़ा होगा, तो ट्री के राइट सब ट्री की रूट दी और वैल्यू दे दी. ठीक होगी जी बात. तो ये राइट साइड में इंसर्ट कर देगा. इंसर्ट को दोबारा कॉल कर दिया गया. तो ये इट्स ए रिकर्सिव फंक्शन, बार बार कॉल किया जा रहा है जब तक या तो इंसर्ट नहीं हो जाएगा. ठीक होगी जी बात, जब तक इंसर्ट नहीं हो जाएगा. सो ये इसका एंड है इफ का, ये लास्ट वाले का एंड है. ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया. यहाँ पे देख लेते हैं. द इंसर्टर चेक्स इफ द करंट नोड ऑफ द ट्री इज नल. इफ इट इज नल द एल्गोरिथम सिंपली एड्स टू द नोड, एल्स इट लुक्स एट द करंट नोड्स वैल्यू. अगर नल है तो सिंपली नोड ऐड कर देंगे, नहीं तो ये करंट नोड की वैल्यू चेक करेगा. इफ द करंट नोड्स वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ द न्यू नोड then the right subtree is traversed, else the left subtree is traversed. अगर छोटी है, the current नोड की जो वैल्यू है वो छोटी है नए नोड से, ठीक होगी, then right subtree is traversed, नहीं तो फिर left subtree traverse होगा. ठीक है जी.
The insert function continues moving down the levels of the binary tree until it reaches at a leaf node. तो insert function है continuous check करता रहेगा जब तक leaf node पे नहीं पहुंच जाता. The new node is added by following the rules of the binary search tree. Rules follow करके आपने tree नए node को add कर देना है. The new node value is greater than that of the parent node. The new node is inserted at the right subtree as it is inserted at the left subtree. So ये सारी इस एल्गोरिथम की कहानी हो गई कि कैसे आपने इंसर्ट करना है. फिर अब डिलीटिंग करना है हमने एक नोड बाइनरी सर्च ट्री से. द डिलीट फंक्शन डिलीट्स ए नोड फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री. However, care should be taken that the properties of binary search tree are not violated and nodes are not lost in the process. तो जब आप डिलीट करें तो ये ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज वायलेट ना हो. तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं जब हम किसी नोड को बाइनरी सर्च ट्री से डिलीट करेंगे. या तो नोड का कोई चाइल्ड ना हो, या नोड का एक चाइल्ड हो, या नोड के 2 चाइल्ड हों. तो 3 केस होते हैं, नो चाइल्ड, 1 चाइल्ड एंड 2 चाइल्ड. अगर नो चाइल्ड है फिर तो सिंपली डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 1 चाइल्ड है तो चाइल्ड है वो पेरेंट की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा. अगर 2 चिल्ड्रन है तो हमारे पास 2 मेथड हैं, या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ हम रिप्लेस करेंगे. इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ, वो देखेंगे हम कैसे करना है. द डिलीट फंक्शन रिक्वायर्स टाइम प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री इन द वर्स्ट केस के अंदर बता डिलीट फंक्शन को कितना टाइम लगेगा कि किसके प्रोपोर्शनल टाइम दैट जितनी उसकी हाइट है. सो इट टेक्स log n time to execute in the average case and big O n time in the case of worst case. worst case के अंदर big O n time लगता है और average case के अंदर big O log n time लगता है. चलिए तीनों केसेस हम स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं. सो पहले केस 1 डिलीटिंग ए नोड दैट हैज़ नो चिल्ड्रन. सो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है. तो सिंपली आपने नोड को रिमूव करना है. मान लीजिए आपके पास एक नोड दिया, उसमें से आपने 78 डिलीट करना है. तो ये मेरा नोड है, इसमें से मैंने इसको डिलीट करना है. तो सिंपली आप इसको पहले यहाँ से सर्च करें. 45 के ये बड़ा है, राइट साइड में आ जाएं. 56 से भी बड़ा है, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ इक्वल आ गया, इसको डिलीट कर दें. तो देखिए कैसे होगा. तो ये मेरा ओरिजिनल ट्री है, 78 डिलीट करना है. तो सबसे पहले मैंने 45 के साथ कंपेयर किया, 45 से बड़ा है तो हम 56 पे आ गए. फिर 56 के साथ कंपेयर किया तो हम फिर उससे भी बड़ा है तो हम 78 पे आ गए और अल्टीमेटली 78 को रिमूव कर दिया. ठीक होगी जी बात. सिंपली इसको रिमूव करना था, कोई आपने चेंजेस नहीं करनी थी और BST की बाइनरी सर्च ट्री की कोई प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं हुई. ये अभी भी बाइनरी सर्च ट्री है. अब दूसरा केस देख लेते हैं जब एक चाइल्ड है. इन दिस केस द नोड चाइल्ड इज सेट एज द चाइल्ड ऑफ द नोड्स पेरेंट. तो इस केस में आपने क्या करना है, मान लीजिए ये मेरे पास एक है, ये नोड है और एक ये नोड है और आपने ये वाला डिलीट करना है. तो आप क्या करोगे, इसको इसका चाइल्ड बना दोगे, यानी इस नोड के चाइल्ड को इसके पेरेंट का चाइल्ड बना दोगे. इस नोड के चाइल्ड को इस नोड के पेरेंट का चाइल्ड बना दोगे. तो ध्यान से देखिए, इन दिस केस द नोड चाइल्ड इज सेट एज द चाइल्ड ऑफ द नोड्स पेरेंट, दैट इज रिप्लेस द नोड विद इट्स चाइल्ड. नोड को उसके चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर दो. नोड को उसके चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर दो. इफ द नोड इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, द नोड्स चाइल्ड बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड्स पेरेंट. अगर ये नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो ये इसके पेरेंट का भी लेफ्ट चाइल्ड बनेगा. ये अगर इसका राइट चाइल्ड है तो ये इसके पेरेंट का भी राइट चाइल्ड बनेगा. सिमिलरली इफ द नोड इज द राइट चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, द नोड चाइल्ड बिकम द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड्स पेरेंट. तो ये इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा. ठीक होगी जी बात. चलिए देख लेते हैं कि कैसे होगी डिलीशन. मान लीजिए ये मेरे पास ट्री है, इसमें से हमने 54 को डिलीट करना है. ये 54 है, इसको डिलीट करना है आपने. तो सबसे पहले मैं 45 के साथ कंपेयर लूँगा. 54 45 से बड़ा है तो हम किस पे आ जाएंगे, 56 पे आ जाएंगे. हम 56 पे आ गए, 56 पे चेक किया, 56 से 54 छोटा है तो हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पे आ गए, 54 पे पहुंच गए. 54 पे पहुंच गए. अब आपने क्या करना है, 55 को 54 की जगह पे रिप्लेस कर देना है या कॉपी कर देना. 55 को यहाँ पे कॉपी कर देना है.
आपने 55 को कॉपी कर देना और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है जी, रिप्लेस 54 विद 55, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, इसको इसके रिप्लेस कर देना है, ऐसे कर ऐसे लिंक कर देना है। ठीक होगी जी बात, तो ये बन जाएगा आपके पास। So this is how we can delete a node with one child. अब तीसरे केस पे आते हैं, alternating node with two children. So in this case replace the node's value with its in order predecessor. ये देख लीजिए, in order predecessor largest value in the left subtree और in order successor smallest value in the right subtree. या तो लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढनी है लेफ्ट सब ट्री में या स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है राइट सब ट्री में। ठीक है जी, द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और द सक्सेसर कैन देन बी डिलीटेड यूजिंग एनी ऑफ द प्रीवियस केसेस। और फिर ये जो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है या सक्सेसर है, इनको पीछे वाले केसेस यूज करके आप डिलीट कर दीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं कैसे, पहले इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की देख लेते हैं। तो हमने ये ट्री है, इसमें से 56 को डिलीट करना है। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कैसे मिलेगा, पहले एक लेफ्ट जाएं फिर राइट राइट जाएं, पहले लेफ्ट जाएं फिर मैक्सिमम जहाँ तक राइट जा सकते हैं चले जाएं। सो एक लेफ्ट जाके राइट जाएंगे तो 55 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपने क्या तो कर दीजिए 55 को रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका काम हो गया। चेक कर लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। एक प्रीडिसेसर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या मिलेगा, एक लेफ्ट फिर राइट राइट। ठीक होगी जी बात, चलिए। सो पहले 45 पे गए, 45 को कंपेयर किया तो 56 इससे बड़ा है, 56 पे पहुंच गए। अब 56 के पहुंच गए तो अब इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना है। प्रीडिसेसर मिल गया हमें 55, तो अब आप क्या करें, 55 को कॉपी कर दें 56 के वाली जगह पे, 55 को 56 वाली जगह पे कॉपी कर दिया जी। और फिर पीछे वाला स्टेप लगा के, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है जी, नो चाइल्ड, तो 55 को डिलीट कर दें, 55 को डिलीट कर दिया गया। तो दिस इज हाउ इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के साथ। और ट्री जो बचा हमारे पास वो बाइनरी सर्च ट्री है। अब दूसरे तरीका देखते हैं, जब आप इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ डिलीट करोगे 56 को। सो अगेन पहले 45 पे गए, 45 से 56 बड़ा है, फिर 56 पे आ गए, 56 पे आ गए, तो 56 से अब 50 के साथ मैच कर गया। तो अब आपने एक राइट जाना है फिर लेफ्ट लेफ्ट जाना था, तो राइट जाके आगे कुछ नहीं मिला तो 78 आ गया, तो 78 को यहाँ कॉपी कर दें, 78 को यहाँ कॉपी कर दें और 78 को इस 78 को रिमूव कर दें। ठीक होगी जी बात, 78 को यहाँ कॉपी कर दिया, चलो नीचे 80 भी था एक, यहाँ 80 भी था। ठीक है जी बात, बट एक बार राइट जाके आपने लेफ्ट जाना था, एक बार राइट जाके आपने लेफ्ट जाना था, तो बट यहाँ राइट है लेफ्ट कुछ नहीं था, तो 78 को यहाँ कॉपी कर दिया, फिर 80 को 78 की जगह पे कॉपी कर दिया, 80 और 80 को आपने यहाँ वाले को डिलीट कर दिया। जी बात, so this is how we can delete using in order successor। ठीक है जी, इसका यहाँ एल्गोरिथम लिख लेते हैं डिलीशन का। डिलीट नाम का एल्गोरिथम है, ट्री वो ट्री है जिसमें से आपने वैल्यू डिलीट करनी है और वैल्यू वो वैल्यू है जो आपने डिलीट करनी है। अगर ट्री की वैल्यू नल है तो वैल्यू नॉट फाउंड इन द ट्री, बात खत्म हो गई। अदरवाइज एक अगर वैल्यू ट्री डाटा से छोटी है तो हम डिलीट को दोबारा कॉल करेंगे, उसको लेफ्ट सब ट्री की रूट देंगे और वैल्यू दे देंगे, लेफ्ट सब ट्री में ढूंढेगा कहाँ डिलीट करनी है। अदरवाइज ना तो छोटी है और ना ही नल है, तो इसका मतलब बड़ी होगी। अगर वैल्यू ट्री डाटा से बड़ी है तो हम ट्री राइट वाला प्रोवाइड करेंगे और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक होगी जी बात, तो वो राइट सब ट्री में ढूंढेगा और उसको डिलीट करेगा। अब ये वाली लाइन नोट करने वाली है, अगर ट्री का लेफ्ट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है और राइट सब ट्री भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक होगी जी बात, तो हम क्या करेंगे, हम लार्जेस्ट नोड फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करेंगे। ट्री लेफ्ट में इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करेंगे। सेट ट्री डाटा इक्वल टू टेम्प डाटा। तो क्योंकि ये हमने जो लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढा था वो किस में डाल लिया था, टेम्प में, तो ये टेम्प के डाटा की वैल्यू हमने ट्री के डाटा में कॉपी कर दी। डिलीट को फिर कॉल किया, ट्री लेफ्ट दिया और ट्री डाटा दे दिया, क्योंकि लेफ्ट में
से डिलीट करना था, तो ट्री का लेफ्ट पोर्शन दिया और उसको ट्री का डाटा प्रोवाइड कर दिया कि ये वाला डिलीट कर दीजिए इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। अदरवाइज अगर फिर हम क्या करेंगे, सेट टेम्प इक्वल टू ट्री। अदरवाइज अगर ये भी कंडीशन नहीं है, दो चाइल्ड नहीं है, एक चाइल्ड हो सकता है, तो सेट टेम्प इक्वल टू ट्री, ट्री की वैल्यू टेम्प के अंदर डाली। इफ ट्री लेफ्ट इक्वल टू नल, ट्री का लेफ्ट पोर्शन नल है, एंड ट्री राइट इक्वल टू नल, राइट भी नल है, यानी कि ये लीफ है, तो सेट ट्री इक्वल टू नल, ट्री को नल सेट कर दें, यानी कि उस नोड को डिलीट कर दें। अदरवाइज अगर ट्री लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ट्री का लेफ्ट नल नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड में एक चाइल्ड है, तो ट्री इक्वल टू ट्री लेफ्ट, ट्री को ट्री लेफ्ट के इक्वल कर दें। अदरवाइज ट्री इक्वल टू ट्री राइट, अदरवाइज ट्री को ट्री राइट के इक्वल कर दें और प्रोसेस को रिपीट करते चलें। ठीक होगी जी बात। और अल्टीमेटली टेम्प के अंदर जो भी मेमोरी लोकेशन टेम्प को अलर्ट थी उसको आखिर में फ्री कर दें, तो आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये दो स्टेप हैं जब हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड एक चाइल्ड है। ये हमारे पास केस है जब कोई चाइल्ड नहीं है, और ये ऊपर वाला केस है जब उसके दो चाइल्ड हैं। ठीक होगी जी बात। ये वाले, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है, ये आप पढ़ लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़ लेना। ये जैसे मैंने बताई है वैसे ही है। समरी में देख लेते हैं क्या कहता है। बाइनरी सर्च ट्री इज ए बाइनरी ट्री with the following properties. The left subtree of a node n contains values that are less than n's values. The right subtree of a node n contains the values that are greater than n's values. Both the left and right subtrees are also satisfy these properties, and thus are binary search trees. आज के लिए इतना है।